One of them is Dr. M.K. Sahani, sir. Dr. M.K. Sahani, sir, born on 17th September 1952. He he completed his homeopathic education of DHMS and he started practicing under the guidance of his father and later on also joined as lecturer in homeopathic subjects at Bihar Homeopathic Medical College and Hospital in the year 1979. Dr. Sahani completed his MD from the BBA Marathawada University, Aurangabad in Maharashtra. He storehouse of information. He later on completed his PhD from MUHS. His long journey in teaching accumulated as vast storehouse of information, finally elevating to the authoritative level of professor. Teaching and spreading the knowledge is the passion for him. He has also worked in magazine of Homeotarang. Dr. Sahani, some of the are Dr. Sahani is regarded as pioneer in the field of medicine administration, especially through the transmission of homeo drug energy from a distance. He was awarded PhD for his research in studies conducted on medicines administration by Maharashtra University of Health Science. Dr. Sahani popularity led him to be elected as member of the Central Council of Homeopathy, where he served as member and later on chairman of the Education Committee for more than 26 years. He was the first user of computer and software homeopath in India that he used as early as in 1986. Later on, he traveled beyond and got expertise in application of other software, including radar. Dr. Sahani is very popular among his patients. His social activity is well appreciated and served the community in various capacities, such as President of Rotary Club, Patna Midtown, President Bihar Voluntary Health Association, and as life member of Red Cross Society, Samaj Kalyan Samiti, and YMCA. Besides all his activity, Dr. Sahani has the passion to read and update himself. His thirst to know is unquenchable, but at the same time, writing books and articles to deliver his best remains only hobby for him. Recently, his article is published in International Peer Review Journal of Critical Review. So now let's get started with our educational webinar. Let's welcome Dr. Sahani. Welcome, sir. Thank you, Dr. Kalpana and Dr. Sweta and all the team member of the Delhi Homeopathic Medical Association. I am aware of this association and I'm very proud. I feel glad today to be the part of this webinar for this for these organizations. Definitely, Delhi Homeopathic Medical Association is doing very wonderful job for the promotion of the homeopathy by organizing a regular webinar. And I have been observing many things since long. So now I think it is the time for me to start my presentations on my topic, which I think I feel that it will be useful for you to know. So let me, can I share my PPT now? Yes, sir. Please. It is about time. Dr. Sweta and Dr. Kalpana ji, I have to speak in Hindi or English? Which language you prefer? You can use both, sir. Okay, I can use, it will be, I think most of the audience have talked in Hindi, so I could also mix up with the Hindi and English. Yes, sir. Yes, sir. सबसे बड़ी बात होती है हम लोगों को यह समझना कि समय का हमारे साथ में क्या महत्व है और आज जब when we are in this era now and after the COVID when all the systems are going on the online
we have learned how to be on the time, because webinar starts at the right time, and it has to be concluded at the right time. So this is wonderful lessons that we are getting from these things. So today I'll be talking about the relationship of the life, uh, life, where we have the two states, that is health and disease, and it with the time. How we are living with the time, and we know that we all are born in a definite period of the time, and we have a definite कुछ सीमित समय ही है, from the birth to the death. This is the only period where we have to survive. ये हम लोगों के लिए दिमाग में रखना पड़ता है कि हम लोग को कितने समय के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, और इस समय में how we are going to manage our time. This is important. But in respect of the health status, and also during the disease status, many a time this time work like a guiding factor for our diseases, for conducting or maintaining, and it has been well understood in our homeopathic system of the modalities, in the perspective of the modalities. Friends, everyone has their own clock. I feel that you are aware of this fact, that we all have a definite period, a clock in our body. Sometimes I want to wake up in the morning, someone wake up at the night, and we all have the own time in the life, and the timing is is for our life only. Yes, समय तो आप सुनते होंगे, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, and this is a constant reminder that is coming from our watch, and that is constantly changing. Not two moments are same, every moment are changed. So what we feel, that we don't experience the change, but only after a completion of the complete cycle or quantum change, we feel that something has. We were born like a baby, now we become an infant, and then we have passed to the adolescence age. But without having consciousness about the period, we have grown up to this age. ये तो समय के साथ हम लोग बढ़ते गए, और ये घड़ियां चलती रही, हम लोग का जीवन भी आगे बढ़ता चला गया। और इसलिए कहते हैं ये लाइफ के लिए हम अगर घड़ी को और इसके साथ में समझ नहीं पाए बहुत समय में, और बहुत समय में समझ के चलते हैं, तो ये हम लोगों का एक कॉन्शियसनेस है, हम लोग का चेतना है, हम लोग का जानकारी के लिए चाहिए कि हम लोग को कितने इसके साथ में हम लोग चल रहे हैं। एक चीज और हम लोग जानते हैं, टाइम जो है सो हम लोग के लाइफ का एक डेली पार्ट है ना। एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज गवर्न्ड बाय द पैसेज ऑफ द टाइम, एंड इट इम्पैक्ट एवरी एक्शंस एंड डिसीजन भी। हम लोग महसूस नहीं करते हैं, लेकिन हर एक समय में हम लोग महसूस करते हैं कि ये चेंज होता रहा है, बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट दैट वी कैन सी। कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा जो कांस्टेंट है वो है चेंज, परिवर्तन, और इस परिवर्तन के साथ में सबसे बड़ी बात जो जुड़ी हुई है वह है समय। तो समय और परिवर्तन का जो साथ साथ चलता है, दैट इज आवर परसेप्शन, एंड वी हैव sometimes we get emotionally attached, sometimes we have to catch a flight, sometimes we have to have a scheduled program, and at that time we are very conscious, we become anxious, emotionally tired, and all these factors go on. So sometimes we are aware and sometimes we are not aware. So this is important things that we can understand about this time. Nature of the time is rooted in our body. हम सब जानते हैं टाइम हमारे शरीर के अंदर में घड़ी बनी हुई है ना। शरीर के अंदर में घड़ी है, हम लोग जानते नहीं, लेकिन हमारे घड़ी के हिसाब से चलता है। आप सवेरे उठते हो मॉर्निंग में, और उस समय में आपको टॉयलेट कार्य होता है, आपको लगता है कि मुझे एपिटाइट खाना है, ये सारी चीज है। तो ये कॉन्शियसनेस जो है, और आप समय को के हिसाब से चलता है, लेकिन हम लोग उसको अनुभूत नहीं करते हैं, है ना। वी डोंट have the perception about that.
बट दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स बिकॉज आई वांट टू, मैं इस सारी बातों को इसलिए आपके सामने में रख रहा हूँ, ये हम लोगों को अगर इसको समझेंगे तो हम अपने पेशेंट के साथ में और अपने लाइफ सिचुएशंस में भी बहुत सारे चेंजेस को ला सकते हैं। एक आपने सुना होगा सिकार्डियन रिदम। सिकार्डियन रिदम का मतलब होता है कि ये क्रोनोबायोलॉजी इन द स्टडी ऑफ सिकार्डियन रिदम, और इसका कहते हैं लाइट रिलेटेड सिकार्डियन रिदम इज स्लीपिंग एट द नाइट एंड बीइंग अवेक ड्यूरिंग द डे। आपको रात होता है तो आपको नींद आ जाती है और दिन होता है तो आप जग जाते हैं। ये क्यों होता है ऐसा? तो इसके लिए कहा गया कि इट इज द सिकार्डियन रिदम, है ना। सिकार्डियन रिदम जो होते हैं तो फिजिकल मेंटल बिहेवियर चेंजेस का है जो 24 घंटे के अंदर में परिवर्तन होता है। These natural processes respond primarily to the light and dark and affect most living things, including animal, plants, microbes, and our life itself. तो ये तो इस सिकार्डियन रिदम को समझना, हमको बेचैनी होती है, नींद नहीं आता है, नींद आती है, चिंता होता है, ये सारे जो है सिकार्डियन रिदम में हम लोग पेशेंट के अंदर में पूछते हैं और कहता है कि डॉक्टर साहब हमको इस समय में काफी बेचैनी लग रही है, इस समय में काफी मेरा दर्द बढ़ जाता है। और हम लोग बहुत सारी दवाइयों को के साथ में भी इसको जोड़े हुए हैं कि आर्सेनिक का 12 बजे रात में उसका प्रॉब्लम बढ़ते हैं, है ना। 12 बजे मिड नाइट, घड़ी का कांटा 12 बजे पर गया, 12 बजे बज गया और हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारे अंदर में प्रॉब्लम आने वाला है। सो ये टाइम जो है सो बड़ा हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, सभी का, मेरे ही नहीं, हम लोग कहते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उसके शरीर को रिदम रेगुलेट करता है। और रिपीटेटिव बायोलॉजिकल प्रोसेस ये सिकार्डियन टाइम को इंडिकेट करता है, कहता है कि हमारे शरीर को कब एक्टिविटी चाहिए, कब एक्टिविटी नहीं चाहिए, कब हमको आराम करना है, कब हमको आराम नहीं करना है, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना, जिसको हम लोग कहते हैं शरीर का घड़ी, शरीर के अंदर में घड़ी लगा हुआ है, ये हमारे पास में, और अगर हम इसको फॉलो करते हैं, इसको समझ जाते हैं, तो वी कैन रिमेन हेल्दी, हम लोग उस समय में स्वस्थ रह सकते हैं। ये हम लोग के लिए एक अच्छा जानकारी ज्ञान है। साथियों, स्लीप अवेक साइकिल, आप इसको भी आप जानते होंगे। एक समय में जो चेंजेस होते हैं, तो जब आपके जब जगे हुए होते हैं तो उस समय में का साइकिल जो होता है उसमें सेरोटोनिन ज्यादा वर्क करता है, और जब रात में सोने के लिए जाते हैं तो पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन निकलता है, जो कि आपको एक्साइटेड हो जाता है और आपको सोने के लिए, तो इसको कहते हैं स्लीप, नींद और जगना और सोना, इसका साइकिल चलता रहता है, ये साइक्लिक है ना। नथिंग, एक चीज और हम लोगों को समझना चाहिए, लाइफ जो है, जीवन क्या होता है, जीवन को हम लोग एक स्टेबल स्टेट नहीं कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज इन मोशन, कांस्टेंट मोशन, इट इज वेव लाइक मोशन, इट इज द फ्लो ऑफ द एनर्जी दैट इज गोइंग ऑन, एंड व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, व्हेन देयर इज अ मोशन, सो चेंज इज द इनविटेबल पार्ट। ये शरीर का, जिंदगी का ये बहुत अच्छा पार्ट है। तो कहते हैं इसमें दो होता है, स्लीप होमोस्टैसिस और सिकार्डियन रिदम, दो चीज से गवर्न होता है। हम स्लीप और अवेक साइकिल जो है, तो हमारे स्लीप होमोस्टैसिस माने नींद के समय में स्टैटिक हो जाना, और फिर एक सिकार्डियन रिदम भी चलता है। जब आप सोए रहते हो तो उस समय में आपके शरीर में हरकत होता है, लेकिन आप महसूस नहीं करते हो, लेकिन हरकत तो होता ही रहता है, उसमें सिकार्डियन रिदम में चलता रहता है। और जब जगे उस समय में सारे स्टेबल रहते हैं, लेकिन जब जगे हुए होते हो तो ये आपको आपके अंदर में इंडिपेंडेंटली एक्ट करता रहता है, और ये डिटरमिन करता है कि कब आपको नींद में जाना है, कब जगना है, कब सोना है। ये एनर्जी के फ्लक्चुएशंस को इंडिकेट करता रहता है। साथियों, लिसनिंग टू द बायोलॉजिकल क्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने शरीर को बायोलॉजिकल को, और हमें सभी पेशेंट बीमार, इसलिए बहुत सारे पेशेंट इसलिए पर बीमार पड़ते हैं कि वो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को नहीं समझते, नहीं समझ पाते हैं। आप याद करो, sometimes you may be staying in the hostel, and at that time the regular rule of the hostel is that you have to get awake at the 5 o'clock, you have to get ready and go to the toilet, so that
you can have a breakfast at the right time. Now, there are and so many problems are arising in many of the students there. Some don't get the urge for the school in the morning. Some don't feel urge for the feel like waking up in the morning. ये होता रहता है. उस समय क्या biological cycle is different from the other students. हर एक स्टूडेंट का, हर एक लोगों का बायोलॉजिकल साइकिल एक नहीं. इंडिविजुअलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे होम्योपैथी के साथ साथ में इसका बड़ा अच्छा संबंध है कि इंडिविजुअलिटी जो है सो बायोलॉजिकल साइकिल को भी रिप्रेजेंट के अंदर में भी देखा जाता है, और एक बैलेंस इसको मेंटेन करने की आवश्यकता होती है. एक चीज को मैं साइकिल को थोड़ा सा ये बताना, ये हेल्दी मेंटेन करने के लिए आपको कुछ कहा जाता है. ये सनलाइट है, एक्सरसाइज है, और एक छोटा छोटा नींद जगे हुए में भी लेना, अवॉइड कैफीन एंड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बेड्स इन द नाइट. अगर अवॉइड करते हैं तो आपके स्लीप अवेक साइकिल्स जो है, हम लोग कभी क्या करते हैं आजकल के समय में, तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया. जब रात में सोने के लिए जाते हैं तो वी हैव द मोबाइल इन आवर हैंड एंड वी आर वाचिंग द डिफरेंट एंड मेकिंग चैट्स एंड गो ऑन. So our cycle is disturbed, and when you have a disturbed cycle, you get your gastric system is not working properly. Your sleep is not. You are not feeling fresh when you get up in the morning. So अब इसी को और देखिए, एक जो अंडरस्टैंडिंग जो हम लोगों का है, ये 12 बजे बेस्ट कोऑर्डिनेशन जो होता है बॉडी का, ये आपका इस साइकिल को थोड़ा सा देखने का कोशिश कीजिए. हमको पता चलेगा कि किस समय में हम कितने अलर्ट होते हैं और किस समय में हमको आप देखिएगा, आप अगर सोते हैं तो लाइट मेरा ये 12 बजे आप इस साइकिल को देखिए. बेस्ट कोऑर्डिनेशन आपके लिए जो इस साइड से चलते चलेंगे, बेस्ट कोऑर्डिनेशन है. फास्ट रिएक्शन टाइम होता है आपको 15:30 पर. ग्रेटेस्ट कार्डियोवास्कुलर एफिकेसी, मसल स्ट्रेंथ. आप इस साइकिल को थोड़ा सा अपने शरीर के साथ में आप देखो तो आपको लगेगा कि एक अच्छा हम अपने शरीर को समझ रहे हैं. तो ये साइकिल जो है तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट साइकिल होता है, जो कि हम लोग को हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हमारे नींद को, तो ये मिड डे टू मिड नाइट 24 आवर्स में ये साइकिल आपके इस तरह से चलते रहते हैं. और बेनिफिट ऑफ द बायोलॉजिकल, अगर आप बायोलॉजिकल क्लॉक को समझते हैं तो इसके आपके क्या होगा, आपके मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा. यू विल हैव ए बेटर एपेटाइट रेगुलेशन, यू विल हैव ए इम्प्रूव्ड स्लीप क्वालिटी एंड मोर इफेक्टिव एक्सरसाइजिंग, शार्पनिंग, और आपके सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं. यू हैव द क्लैरिटी ऑफ द माइंड. कभी आपने सोचा कि आप जब सो करके उठते हो तो आपको फ्रेश फील नहीं कर रहे हो? कभी आप सो करके सोचते हो कि हम तो उठ रहे हैं तो आज हमको मेरा खाना ठीक से पचा नहीं है? I don't, and most of the time, and this is the effect that only because you have not listened to your biological clock. Environmental influence हमारे ऊपर में प्रकृति का, बाहर का, so affects us. Biological rhythm controls the life of virtually all organisms, impacting numerous aspects ranging from subcellular process to behavior. है ना, आपके हर एक चीज पर, आपके शरीर के अंदर में भी, आपके बिहेवियर में भी. और मेनी स्टडीज हैव शोन दैट चेंजेस इन एबायोटिक एनवायरमेंटल कंडीशंस कैन डिस्टर्ब और entrain the circadian rhythm. Light dark cycle. Now this is another thing, and based on the circadian cycles only, the 24-hour rhythm of the sunlight and darkness has been predictable feature throughout the evolutionary history of the life on Earth, and virtually all life forms have adapted to this rhythm. The length of the
light period varies markedly at high latitude with a long day length in the summer and short day in the winter. In polar area, this is where there is a constant darkness, है ना. आप पोलर एरिया में जहाँ पे बहुत सारे अति होते हैं, वहां पर आपका देखिएगा कि एक अलग होता है. Change in photo periods predict environmental conditions with decreasing temperature corresponding to the shortening of the day length and increasing temperature, the day length also coinciding. So ये एक आप environment के साथ में, so you are the part of the environment, you are part of this planet. So you should not feel that you are separated from this planet. You and planet you are the part. So everything that happens in your planet, on this or in the environmental, you have your body accordingly get associated and changed. You can say that the body, our life is have a concomitant symptoms. Concomitant we understand in homeopathic terms that it is concomitant with the environmental factors. एक चीज और हम लोगों को समझना चाहिए, हमारा जो इंडोक्राइन सिस्टम है, ये क्यों हम लोगों को दिया गया. इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस को में हमारे क्लॉक को समझने के लिए ये इन्वायरमेंटल को चेंज को करने के लिए और रिदम को मेंटेन करने के लिए आपका जो है सो आपके अंदर में हार्मोनल सिस्टम है. हार्मोनल सिस्टम व्हाट को मैंने ऐसा देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम को मैं इस तरह से देखता हूँ कि ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स जो होते हैं इट क्रिएट्स ए रिलेशनशिप विथ योर माइंड एंड द बॉडी एंड विद द एनवायरनमेंट. ये तीन जगह पर हार्मोन सिस्टम जो है तो आपको को रिलेट करता है. इसीलिए आपके शरीर में, हम लोगों के शरीर में एक हार्मोनल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया. नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक चेंज अफेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डे लेंथ, है ना. ये ऐसा हम लोग देखते हैं, दिन किसी गर्मी के मौसम में दिन काफी लंबा होता है, रात के समय जाड़े के मौसम में विंटर में आपको काफी क्या कहते हैं रात जो है तो काफी लाइट रात होता है. तो ये आपका जो चेंजेस होता है लैटिट्यूड्स में, इसके कारण उसके साथ में बॉडी भी आपका फिजियोलॉजी में चेंज करता रहता है. Now, this is these are the factors that आपको environment कहता है. एक लेवल ऑफ ऑक्सीजन, टॉक्सिक केमिकल्स, वाटर लेवल, टेम्परेचर वेरिएशंस, ह्यूमिडिटी एंड ड्राइनेस ऑफ द ड्राइनेस लेवल. देन प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस भी हम लोगों के ऊपर में होता है. आप हम लोग होम्योपैथी में बहुत कुछ जानते हैं कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो, और हम लोग के समाज में भी इस तरह का प्रचलन है, हम लोग अपना ग्रह नक्षत्र की कल्पना करते हैं, and that helps you in predicting many of the time. So when the time you are born, and at that time when you associate your time, you can make a predictions of the whole life. So planetary influence हमारे ऊपर होता है. And in our repertory, in our Metamedica, we find that we are related. There are some changes when the moon phases get changed, sun phases, moon phases में जब होता है तो उस समय में पूर्णिमा के समय में और फुल मून में और न्यू मून के समय में तो हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस होता है. और planet mainly focus on the movement of the sun and moon. Considering our star sign when we are born, the 9 planets along with the star like sun and moon are decided and placed accordingly. Planetary movement and their transit through the sky in the past, present and future play a vital role in the zodiac sign. तो आप सभी को लोग इसमें विश्वास करें ना करें, लेकिन this is the astrology, the part of the life, and astrology has got some basic understanding for that. So we have to be careful of that. So moon and planets affect human behavior. And it is now well-known fact, and you might have understood also. जब आप देखते हो तो जब moon is in the watery sign, the people will become more emotional. People want to get organized and work hard. In the moon is in the earth sign. It is the fire sign. They will have the quick temper and tongue.
when the moon is in the air sign, they're like Gemini, Aquarius. ये आपको कहते हैं ये इन नक्षत्रों में जिनके साथ में और आदमी हर एक आदमी क्या कहते हैं कि मैं एक्वेरियस हूँ, मैं जेमिनी हूँ, मैं लिब्रा हूँ, मैं जोडाक साइन में हूँ। तो आप देखते होंगे कि उन लोगों के बिहेवियर में भी इस तरह के चेंजेस होते हैं। तो बेसिक ऑफ द टाइम में कहते हैं डे कितना होता है, व्हाट इज नाइट, है ना, व्हाट इज आवर्स, मैं इसके ऊपर में नहीं बताना चाहूंगा। मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम आवर्स को कहते हैं, आवर्स को हम लोग सभी समझते हैं, सेकेंड्स को भी कहते हैं, सभी को लोग समझते हैं। एंड ये एक टाइम जोन के विषय में थोड़ा सा दिया गया है। अर्ली मॉर्निंग को हम लोग लेते हैं 2 बजे 2 AM to 6 AM in the morning. Dawn is around the sunrise, and then afternoon 12:30 to 4. And ये टाइम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके बैक्टीरिया मेडिका में you have the relationship with this time. When you read properly the repertory and Mitra Medica, you can get this. Night is the period of ambient darkness from the sunset to sunrise during the each 24 hours when the sun is below the horizon. Exact time when the night begins and the end depends on the location and vary throughout the year based on factors such as season and the latitude. So again, this is the cycle morning sun. Yes, sorry, and then there are certain terminology related to the rubrics in your repertory. Midnight. What is midnight? Midnight is the time of the day when the clock strikes 12 AM and marks the beginning of the new day. हम लोग कहते हैं ना कि 12 बज गया, 12 बजे रात्रि को से हम लोग कहते हैं सुबह होता है तो मॉर्निंग होता है। नो, मॉर्निंग स्टार्ट्स जस्ट एट द 12 AM उस समय में कहते हैं। देन मिड डे, इट इज ऑल्सो 12 PM, है ना। 12 बजे दिन को हम लोग 12 PM कहते हैं क्योंकि यह मिड डे है। और फिर मॉर्निंग इज द टाइम that begins when the sun rises and extends around until the midday. And then afternoon, then when sun is in the declining phase, जब वो नीचे की ओर जाने लगता है तो उस समय को हम लोग आफ्टरनून भी बोलते हैं। Then evening is the part of the day between the end of the afternoon and night, from sunset to bedtime and from approximately 18 hours to the hours. Then night is the time when there is actual darkness from sunset and before sunrise. And then dawn. Dawn is also the time just before the sunrise when the sky starts to lighten and the world wake up. This is the time when the sun rises or comes up, sunrise. And dusk or twilight is the time when there is partial darkness between day and night. This means just before it becomes completely dark in the evening. All these terminology are being related to our rubrics in the Mitra Medica. ये सारे हमारे Mitra Medica में हैं और repertory में. So we must have a better understanding for all these rubrics so that we can have a better applications of this. And they are related to the time. Then sunrise or sun up, that is in the जिसको US में कहते हैं sunrise or sun up, is the moment of the upper edge of the sun appears in the horizon of the morning. In the morning, marking the beginning of the daylight. It occurs when the earth rotates on its axis and the sun becomes visible in the east, bringing light to the world after the darkness of the night. And sunset is the time when evening, so different regions में अलग मान, and daylight is the light of the day. Now, I'm going to talk about the Bonifacius, Dr. Bonifacius terminology about and understanding about the time. And Dr. Bonifacius के 7 hexameters को आपने सभी को, you must be knowing, Quiz, Quid, Quibi, Ubi, Quir, Commando, and Cunando. I'm going to discuss on the Cunando. Cunando is an Italian word. और इस Italian word को Dr. Bonifacius ने कहा कि the time, because when a person comes to you, when a patient comes to you, you ask, you have the curiosity in the mind. Who is the, what type, what is the personality type? Then you decide what is the problem with him. And then you decide, you ask about what is the problem and where is the problem.
and what are the associated problems, and what are the causes of the problem. And then after you say, and with all these problems, how he is surviving, what is his status of the life, on this planet, whether and that is the, it has been divided into two parts. Commando means with the environmental factors, all the earth, air, water, air, climate, and all those factors. How you feel better with the open air, how you feel better with the cold air, with the warmth and cold. And then again, last part, the last word is the Punando. It is evaluate when. And when these all things happen. Because we have the relationship, exact relationship with the time. Now, this is beautiful songs, Italian songs. Punando, Punando, Punando. This Punando word has been taken from this Italian word, and it has been used by doctors. Tell me when will you... So, Punando. Dr. Bonnick's sense, Punando pertains to the modality of time. In this certain category, we include aggravations and ameliorations of the sickness when regard to the time, certain hours, part of the day and night, and periodicity of the season. So this is the Punando part that I am going to, that my purpose of this lecture was to discuss about the Punando part and the Boger-Bonnick's times of remedies part. I'm coming to this. Punando, the last questions concern to the time of the appearance of the aggravations or the improvement of the elements and following the natural order after preceding, and is hardly of less importance in therapy than the last one. From the time of Hippocrates and his commentators up to the time, great attention has been bestowed on the period of the time in the various phases of understanding of the diseases. The endeavor has been made to fix the period and continuation of the beginning of the increase, the ACMA, the decrease, and the end of the disease. This would indeed make a useful contribution to the recognitions and the characterizations of the disease. Now, questions of the time, but questions of the time, but it is the periodical return of the morbidity. And almost every medicines, you will find, like the lycopodium, the symptoms are getting aggravated in the arsenicum, the symptoms are getting aggravated in the midnight, and so many types of understandings we all have. But this consideration is very important. I was able to cure a case of the epilepsy only by understanding that convulsion attack was coming at a particular time in the 5 p.m. and that provided me a best medicines for that, and never it recorded. So, and then now you have the menstrual. Another problem is that with the female is the menstrual disorders, season change, and you see that many ladies comes with the different cycle, different periodic menstrual cycle at the different period of that year.
definite secondary causes cannot be discovered, and where it is or mostly in cases the attacks are not closely bound to any sharply defined period, they have no therapeutic value for homeopathic as they lack the quality of a useful indications. The greatest importance of the aggravations and alleviations of the symptoms, time of the day, and which refer to the single symptom as well as those refer to the general health. Homeopathy possesses a great and valuable treasure of well-proven experience, which are being more and more enlarged and careful observation. For there is hardly any disease from the malignant internal fever down to the local elements in which during the different time of the day there does not manifest itself a more or less decided and distinct aggravations or the alleviation. Now might have gone through this wonderful book, Times of Remedy and Moon Phases by Dr. C.M. Boger. And this book is very useful for the purpose that it has given us a lot of information about the time. This repertory mentions about the aggravations and ameliorations of the complaint in the frame of the time, in the accordance with the hour, day, week, month, year. And to understand these things that I had tried to make. And while compiling this repertory, Dr. Boger follows the Bonnigson's schema of repertorial representations. In the section of moon phases, he refers exclusively to cured cases and undertook them in order to determine the relative importance of remedy in this respect. The time of the remedy is based upon the Dr. Boger's own practical observations and long clinical experience. He emphasized the importance of time factor and moon phases in the action of drug. It is through his untiring energy that new angle of the prescribing the medicines has been about. Times of remedy was mainly based on the Dr. Boger's own practical observations and long clinical experience in various observations. He was opinion that particular time when the medicine manifests its full therapeutic action is often a decisive importance. This work appeared in the first time in an article. Just there Berlin various homeopathy. Subsequently, it was improved by the published independently. Boger has emphasized the importance of the time factor, and his work is truly a great help for prescribers who give importance to the time factor as well as various modalities. It was published in 1933, and there are 3 grading of the medicine. The total number of medicines that has been used in this book is 420. So the arrangement of this book is like this. The different chapters are time, various hours. General rubrics start with 1 a.m. followed by the various sub-rubrics. It is followed by 2 a.m., 2 a.m., 3 a.m., midnight, and weather is spring, summer, autumn, winter, then fever, chill, heat, and morning, 4 a.m. to 9 a.m., forenoon, 9 a.m. to 12 noon, afternoon, 12 noon to 6 p.m., and evening 6 p.m. to 9 p.m., and night 9 to 4 a.m. in the morning. So this is the arrangement of this book. Now, just I'm going with the periodicity, regular appearing at the same hour, Arenia drawn. Every 21 days, Aurum metallicum. Every 4th day, Arsenicum China. These are some example I am giving you. Every 14th day, Arsenic China lachesis. 14th day better than 14th day worse, Magnesia mule. Every
seventh day arsenic sulf, every second day calcarea carb china, or stomach symptoms daily at the same hour epicarb, pain attack of night regularly towards the midnight argentum nitricum, and a spasm or twitching uh, daily in the same hour ignacia. So these are the things that you will find so much wonderful things. Then there is a moon phases. This work was added in this part chapter was added in 1931, and total number of medicines used in this chapter is 186. Dr. Boniface has emphasized the importance of the moon phase in the action of drugs, and it is represented in the form of table of moon phase, the first quarter, full moon, last quarter, and the new moon. This is the, so time does not change us, it just unfold us. So this is important message for you, that time does not change us, we have to adjust us, and it tells you when you are, कब आप हो, कैसे हो, ये समय बताता है, आपको बदलता नहीं है, आपको बताता है कि आप कहाँ पर क्या हो, कैसे, आपको एहसास दिलाता है, तो आपको अनुभूति होती है, आप कॉन्शियसनेस आता है, आपके में जागृति आती है कि आप अपने आप को महसूस करते हो कि मैं हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट है. दिस इज इम्पोर्टेंट. और सबसे अंत में, लाइफ इज ए वन टाइम अपॉर्चुनिटी ऑफर, सो यूज इट वेल, हम लोग कहेंगे. और इसके साथ में हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त होता है, और मैं इस लेक्चर को समाप्त करना चाहूंगा एक छोटे से समय से संबंधित बॉलीवुड के गाने से. बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा, दैट यू कैन लिसन टू दिस. थैंक यू. हम थैंक यू सो मच सर, आज के इतने एनलाइटनिंग और नॉलेजेबल सेशन के लिए. अब मैं जहाँ पर हमारे प्रेजेंट जितने भी डॉक्टर्स और लर्नर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि किसी की भी कोई क्वेरीज हैं तो वे अपने रेज हैंड कर दें या फिर चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर दें. सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछिए सर, पूछिए, अच्छा लगेगा. सर देखिए, वैसे तो आप को मैं जब से सुन रहा हूँ, जब मैं सेकेंड ईयर में था, 1999 की बात है, DHMS में लखनऊ में, तो आप हमारे कॉलेज में आए थे। और आज आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में जो भी कुछ बताया, तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आजकल हमारे पास, जैसे अभी जैसे हम दिल्ली में हैं, तो कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं, वो कहते थे कि सर टाइम मैनेजमेंट को कैसे करें। और क्योंकि सिटीज के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो गई हैं जिसकी वजह से आपको शायद रात को जगना पड़ता है, आपको मॉर्निंग में लेट उठना पड़ता है, उनके बिजनेस आवर्स ऐसे हैं, काम का ऐसा वो है, तो हम उनको एक्सप्लेन तो करते हैं। लेकिन जब कभी हम, क्योंकि हम डॉक्टर्स भी खुद भी, मतलब जो हमारे फ्रेंड सर्किल है, जो हमारे सारे मेंबर्स हैं, या जो भी ऐसे डॉक्टर्स फ्रेंड हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट को लेकर के अभी बहुत सारा एकदम परेशान हो गए हैं। तो उसके लिए एक सबसे मतलब बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है इसका, मैंने एक जो रोल अपनी तरफ से जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कि जो हमारी डाइट्स हैं, मतलब जो हमारा आज का खाना पीना है, इससे भी कोई रिलेशन है ऐसा कि हमारा वो टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ रही है? डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है. अक्सर हम लोग पेशेंट को एक सलाह देते हैं कि इस समय में खाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो सोना चाहिए.
लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सलाह देने के पहले हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए, उसका पूरा आप लाइफ स्टाइल को पहले स्टडी करो, है ना। लाइफ स्टाइल स्टडी होने से इंडिविजुअल, हम किसी को जनरल मैंने एक छड़ी से सभी को हम सभी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इंडिविजुअलिटी को देखो और उसके बॉडी क्लॉक को देखो। बॉडी, इसलिए मैं बॉडी क्लॉक की चर्चा किया, सिकार्डियन साइकिल्स की चर्चा किया। सिकार्डियन साइकिल्स हम लोगों का बहुत इंडिविजुअल फीचर्स है। हम सभी को एक पर्टिकुलर टाइम में भूख लगता है, एक पर्टिकुलर टाइम में इच्छा होती है। तो अगर हेल्थ को मेंटेन करना, अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें होती हैं। एक शरीर को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, और दूसरी बात होती है सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए। हमको ऑफिस में 10 बजे जाना तो जाना ही है, हमको क्लिनिक में इतने बजे तो बैठना ही बैठना है। ये दो फैक्टर्स को कोऑर्डिनेट करने की बात आती है। तो एक पहला फैक्टर है कि पहले तो अपने कुछ ऐसी चीज है जो कि कंट्रोल आप कर सकते हो, कुछ ऐसे चीज है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कि कंट्रोल नहीं करते। तो उसके साथ में अकोमोडेशन करने की बात। अब मान लो कि किसी को 10 बजे ऑफिस जाना है, और 10 बजे ऑफिस जाने के लिए उस समय तक उसके सवेरे उठ करके रेडी होने में, फ्रेश होने में अक्सर लेट हो जाया करता है। अब उसके साथ में मैं क्या समझौता कर सकता हूँ? तो वी हैव टू ट्राई, एंड विद दिस मेडिसिन भी आप कहोगे कि मैं चेंज कर दूं तो नहीं होगा। उसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा, एंड द इम्पोर्टेंस, वो कहाँ पर क्या, कहाँ क्या 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 जरूरत है। तो व्हेन यू, जब आप कोई पेशेंट को समझा रहे होते हो, तो आपको उसको बताना पड़ता है कि व्हाट इज यू, आपका लाइफ का प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी सेक्टर्स को एक्सेप्ट कर, और दूसरी चीज को एक्सेप्टेंस, है ना, स्वीकार करना। ये पेशेंट को समझाना पड़ता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं। अब हमारे पास में एक पेशेंट आए, अब वो नींद की बात करते थे। कहते डॉक्टर साहब मुझे रात में तो नींद आती ही नहीं है, मैं रात भर नहीं सो पाती हूँ, और जब दिन होता है तो सोने का अभ्यास कर, सोने का इतना नींद आता है, इतना नींद आता है कि मैं मुझे कुछ काम नहीं हो पाता है। अब ये तो है आपका जो है सो, इसका जो सिकार्डियन साइकिल जस्ट चेंज है। हमारा बॉडी का जो हार्मोन जो है सो, लाइट में हम लोगों का बॉडी अलग रिएक्ट करता है, और बिना लाइट के हम लोग का अलग रिएक्ट। मैं इस लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ जिस लाइट में अभी हम लोग बैठते हैं, हम उस लाइट की बात कर रहे हैं जो सन लाइट से रिलेटेड, सन के साथ में। क्योंकि सन जो है तो हमारे पूरे प्लानिटरी सिस्टम से, तो प्लानिटरी सिस्टम का जो लाइट है उसके साथ में अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो पहले तो आप जज कर लो कि उसका प्लानिटरी सिस्टम के साथ में उसका जजमेंट है, कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हम उसको टाइम फैक्टर के अंदर में उसको ले सकते हैं, है ना। हम लोग के पास में रूब्रिक्स है रिपोर्टरी में, स्लीपीनेस डे टाइम, स्लीपलेसनेस नाइट, है ना। आप स्लीप चैप्टर में जाओगे तो स्लीपीनेस ड्यूरिंग द डे टाइम एंड स्लीपलेसनेस इन द नाइट। व्हाट इज द, ये रूब्रिक्स का मतलब क्या होता है कि हम बीमार हैं, ये इंडिकेट करता है दिस इज द पैथो, दिस इज द चेंज्ड। तो हमको सिम्टम्स के रूप में क्या चाहिए, उसके अंदर में चेंज क्या हुआ है। और अगर चेंज आप फील करते हो कि इसका ये नॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहते हैं चाहिए, तो हम उसको एडवाइस कर, उसके लिए हम लोग व्यवस्था इस तरह से दवा के माध्यम से हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उसके लिए, उसके जीवन के लिए, उसके बॉडी क्लॉक के हिसाब से उसके लिए सही है, तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। केवल उनके लिए काउंसलिंग करके, उसको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा करके उनको उसके प्रति एक्सेप्टेंस लाना होगा। क्योंकि बॉडी पेशेंट जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करता है, पहले जब तक स्वीकार नहीं करता है कि मैं ऐसा करूं, तो उसको नहीं। एक पेशेंट की बात मैं कर रहा था, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, नींद की गोली लेते हैं। मैंने, और उनको थायराइड के प्रॉब्लम थे, डायबिटीज थे, सारे प्रॉब्लम थे, एंड शी वाज वेल टू डू इन द फैमिली, बहुत अच्छे परिवार के थे। लेकिन सारी चीज का समस्या क्या था, समस्या यह था कि उनके पास में काम ही नहीं, बैठे रहना है ना। अब उसको बैठे रहना है, उसको नींद कितनी आएगी 24 घंटे में? 24 घंटे में वो तो हमेशा कुछ ना कुछ एक झपकी लेते ही रहते हैं। थोड़ा देरी के लिए, 5 मिनट के लिए नींद आ गई, 5 मिनट, सो इंटरप्टेड स्लिप्स, है ना। ऐसा भी आप लोग देखते होंगे कि हम लोग सो रहे हैं तो इंटरप्टेड, आप क्लासरूम में बैठे हो, सो रहे हो,
क्लिनिक में बैठे हो, कुछ देर के लिए झपकी आई, फिर आपको ठीक हो गए। तो ये इंटरप्टेड स्लीप्स का रूब्रिक अगर पेशेंट में थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये उसमें उसका स्लीप क्यों होता है इंटरप्टेड? बिकॉज माइंड वेव्स इज वर्किंग वेरी फास्ट। माइंड वेव्स, उसके अंदर में चिंता है या नहीं तो उसके अंदर में कोई प्लानिंग है, उसके अंदर में माइंड जो है सो रेस्ट में नहीं है, इसीलिए उसके अंदर में हमेशा काफी फास्ट वे में उसका माइंड ट्रेवल करता रहता है और उसके में इंटरप्टेड। तो ये आपको पेशेंट को समझने में है ना, रेस्टलेसनेस, इंटरनल रेस्टलेसनेस को इंडिकेट करता है। ये सारी चीज को समझने से हम लोग रोगी को समझा सकते हैं, उसके बेचैनी को भी कम कर सकते हैं। और मैंने देखा हूँ थोड़ा सा कभी कभी हम लोग अपना पेशेंट के साथ में चाहते भी करते हैं कि आपको अगर ये नींद की गोली खाओगे तो मैं इलाज नहीं करूंगा। और ऐसे करने पर मैंने देखा कि उन्होंने नींद की गोली छोड़ा और मैंने उनको कहा कि तुमको सवेरे इतना वॉकिंग करना है, इतने इतने बजे खाना, छोटे छोटे एडवाइस दीजिए, है ना। बड़ा एडवाइस दीजिएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप मॉर्निंग वॉक के लिए कहोगे 1 किलोमीटर दौड़ो तो नहीं दौड़ सकता है, लेकिन बट आप यू फिर से दैट कि 10 मिनट के लिए चलो, वो चलने के लिए तैयार हो जाएगा। 10 मिनट तो उसके लिए, और 10 मिनट का सुबह चलता है, 10 मिनट शाम चलता है, तो आदत बन जाएगी ना। हैबिचुएट करना है और हैबिचुएट करके हम लोग उसके बॉडी क्लॉक को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो चीज है, मेडिसिन एंड उसका काउंसलिंग। डॉक्टर हेनीमैन ने भी इस बात को बहुत अच्छा से कहा है कि काउंसलिंग जब तक आप पेशेंट को नहीं करते हो तो दवा कभी कभी हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग मेरी दवा काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो दवा को भी काम कराने के लिए और आपको पेशेंट के साथ में अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करने के लिए हम लोग को ये चाहिए, करना जरूरी होता है। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। बस एक एडिशन और एक क्वेश्चन और है कि आजकल हमारे पास जो पेशेंट हैं उनकी तादाद थोड़ी बढ़ गई है। ऐसे पेशेंट जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो हम नहीं कर पाएंगे, मतलब हम डाइट प्लान नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पार्टियों में जाना पड़ता है, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, आप जो है दवाई की डोजेज बढ़ाते रहो। तो इनके लिए क्या रूब्रिक्स लेना चाहिए हाँ, हमें? ये बड़ा अच्छा आपने तो कहा। डाइट प्लानिंग तो नहीं फॉलो करते हैं, मैक्सिमम पेशेंट नहीं फॉलो करते हैं। नहीं फॉलो करते अगर सर। आपका डाइट प्लानिंग, आप उसके लाइफ में जाइए। अब हम लोग एक देखिए, बहुत अलग अलग सेक्टर के रोगी आते हैं। कोई गरीब सेक्टर का रोगी आता है, उसको सवेरे, और कुछ ऑफिस जाने वाले आते हैं। अब उनको 10 बजे ऑफिस जाना है तो 10 बजे वो ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो सवेरे का खाना 10 बजे ही खा लेता हूँ, है ना। और फिर लंच में के लिए ले जाते हैं तो लंच के लिए कुछ 2 रोटी ले जाते हैं या कुछ ये खा लेते हैं, शाम को आते हैं तो खाते हैं। तो इनके इनके लाइफ साइकिल, ये टाइम को देखते हुए आपको डाइट प्लान, उसको चार्ट बनाना पड़ेगा, है ना। उनके पर अब उनको सवेरे में जैसे मैं पूछता हूँ उनसे कि आप रात में कितने बजे सोते हो, तो अगर बताता है कि मैं 12 बजे सोता हूँ, 10 बजे सोता हूँ, फिर 10 बजे तो 10 बजे सोने के पहले कितने बजे खाना खाते हो, तो बताता है कि हम इतने, इस समय में इतने बजे खाते हैं। तो उस गैप को देख लीजिए। तो मैं उसको इंडिकेट करता हूँ कि देखो तुम इतने 12-10 बजे खाना खाए या 8 बजे खाना खाए, और सुबह फिर सुबह में 10 बजे 8 बजे खाना खा रहे हैं, कुछ खाने ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो ये इतना फास्टिंग, एवरीडे फास्टिंग, आपका बॉडी तो में गैस नहीं बनेगा तो क्या होगा, है ना। तो मैं कहता हूँ, हम लोग बिहार में बताते हैं कि सत्तू को घोल करके 1 चम्मच पी लो, या नहीं तो ग्लूकोज का पानी पी लो, या नहीं तो कोई जूस ले लो, कोई कुछ बिस्किट कुछ खा लो, खा करके अच्छा है, खाली मत पियो। तो आप उसके छोटे देखिए, डाइट प्लान को अगर इम्प्लीमेंट करना है, डाइट प्लान आपके प्रिस्क्रिप्शन में जबरदस्ती लिख देने से कभी भी इंडिकेट नहीं होता। और इम्प्लीमेंट अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट होगा। और क्रिएट करने के लिए कहते हैं पेशेंट को समझाना, उसको उसको उसमें आदत स्टैब्लिश करवाना, ये जरूरी होता है। बहुत से लोग पेशेंट आते कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो खाने के लिए तो समय ही नहीं मिलता है। बच्चे लोग के विषय में कहते हैं मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं, मेरा बच्चा खाता नहीं, ये बहुत बड़ा बीमारी है ना। मैक्सिमम महिला आएंगी कि मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं है। मैं बोला खाता नहीं है तो इतना बड़ा बड़ा कैसे हो गया, इतना हेल्दी कैसे है, बिना खाए कैसे है। तो है कि अरे सवेरे में कभी एक एक बिस्किट खा लिया,
कभी कुछ खा लिया, तो दिन भर तो खा ही रहा है, दिन भर तो खा ही रहा है। तो खा ही रहा है तो खाने की बात कहाँ से आई? वो उसमें छोटे छोटे पीस मिल में खा रहा है ना। ये चीज को समझना होगा, और उसको तब उनके माँ को बताना पड़ेगा कि आप देखो इसको उसको दिन भर इतने छोटे छोटे खाने मत दो, तब उसको अपने भूख जगेगी, और भूख जगेगी तो वो आपको उस समय में उसके क्वांटिटी जो है तो एक, मतलब माँ समझती है कि मेरा बच्चा इतना खाना चाहिए, लेकिन इतना खाना चाहिए वो तो उसका जब पेट में पहले से जगह होगा तब तो खाएगा। ऐसी यही चीज है, प्लानिंग कराना, प्लानिंग के लिए पेशेंट के लाइफ स्टाइल को, सिचुएशंस को देखकर, प्लस टाइप ऑफ द फूड क्या हम प्रिस्क्राइब करें, ये भी हमको देखना चाहिए। कितना अफोर्ड कर सकता है, क्या उसको मिल सकता है, अवेबिलिटी, और किस सीजन में मिल सकता है। अगर इसको नहीं करेंगे तो हमको हम लोग उसको, मेरा एडवाइस बेकार जाता है, कभी नहीं इम्प्लीमेंट करता ही नहीं, है ना। तो उसके जब तक उसके पेशेंट के विद इन रीच होना चाहिए, उसके पास में होना चाहिए। और क्योंकि आपके पास में अगर जितना दूरी रहेगी तो आप उसको लेना नहीं चाहिएगा, लेकिन हाथ में पास में पड़ा हुआ है तो तुरंत ले लेते हो। ये उसके विद इन रीच क्या क्या है उसको आप एस्टिमेट कीजिए, और उस एस्टिमेट करने के बाद में आपको उसके डाइट प्लानिंग या उसका खाने का टाइमिंग का प्लानिंग वो आपको एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग है, थोड़ा सा सिचुएशनल स्टडी के हिसाब से जो एस्टैब्लिश किया हुआ टाइमिंग है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच सर। सर एक क्वेश्चन है डॉक्टर डिम्पल बिश्नोई का। हाँ बोलिए। मैक्सिमम मैक्सिमम डॉक्टर्स पेशेंट को बोलते हैं एम्प्टी स्टमक मेडिसिन के लिए, कुछ मेडिसिन एक नाइट में बोलते हैं लाइक नर्व्स, बट व्हाई? और उनका कहना ये भी है, मींस इफ वी गिव सल्फर एट नून इट्स नॉट वर्क। मैडम मैं इस उसको फॉलो नहीं करता हूँ। देखिए, आपने क्या सवाल किया कि खाली पेट दवा खानी चाहिए। हाँ सर, जैसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ये मेडिसिन लेना, सिंगल डोज देते हैं या फिर 30 से भी हाँ देते हैं, वो उनका पूछना है कि जैसे हाँ, हम तो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक देते हैं, नाइट में जो नहीं है, तो क्या इसका क्या माना जाए? मीनिंग क्या आप निकाले कि आप वर्क ये नहीं बताइए, करेगी या क्या चीज? एम्प्टी स्टोमक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये एम्प्टी स्टोमक के मतलब है, और हम क्यों पेशेंट को बोले एम्प्टी स्टोमक खाने के लिए? क्योंकि जब दवा जो एम्प्टी स्टोमक का मतलब होता है, ये जब खाने का मतलब क्या होता है, इट हैज टू गो इनटू योर स्टोमक, फिर एसिमुलेट करेगा, है ना, तब ना खाना कह रहा है। लेकिन आपकी दवा कहाँ जा रही है? आपकी दवा, होम्योपैथिक दवा क्या है? डाइल्यूशन में है, डाइल्यूशन में उसको तो डाइजेस्ट करने का जरूरत ही नहीं है। तो आप एम्प्टी स्टोमक दो या खाने के बाद में दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं होम्योपैथिक दवा में मैं कभी भी पेशेंट को नहीं कहा कि आप एम्प्टी स्टोमक में ही खाओ। आप आपको जो आपको कहा कि दवा जो है हमारा, होम्योपैथिक दवा एलोपैथिक दवा नहीं है, दोनों में अंतर है। वहां पर मटेरियल है, केमिकल्स है, हमारे दवा में तो केमिकल है नहीं। तो मैं कैसे कह दूं कि इसको एम्प्टी स्टोमक लो, है ना। हमारा तो ये तो बॉडी को, आपके बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है, सेंसरी ऑर्गन्स है, उसको टच करने के साथ में ही काम करने लगता है, तो डायरेक्ट अटैक करता है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होता है। इसको भाया मीडिया नहीं जाता, एक मैंने आपके पेट में गया, पेट में डाइजेस्ट करेगा, ऐसे करेगा, ऐसा नहीं जाता है होम्योपैथिक दवा। होम्योपैथिक दवा को काम करने का तरीका अलग है। ये जो कॉन्सेप्ट है खाली पेट में और ये खाने के बाद में, ये खाने का कॉन्सेप्ट आपको हमारे सिस्टम पे लागू नहीं होता चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं कभी भी अपने पेशेंट को ये नहीं कहा कि खाली पेट में, आगे सवेरे में खा लो, सवेरे उठ करके, है ना। अब सवेरे उठ करके उसको अगर वो खाली पेट रहना नहीं बर्दाश्त होता, खा के खा लेता है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। रात को बेड टाइम में जाने लगो तो खा लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो इसको अनुभव किया हूँ अपने रोगियों के साथ में कि टाइम फैक्टर और खाली पेट और एम्प्टी स्टमक और खाने के बाद की बात आती है, उन दवाओं के लिए होता है जिसको कि हमको डाइजेस्ट करना होता है, मटेरियल फॉर्म में लेना पड़ता है, उनके लिए। हमारी होम्योपैथिक दवा को के साथ में यह बात लागू नहीं होता है, चाहे वो मदर टिंचर हो या पोटेंसी हो, वहां पर इस बात को लागू नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। नो मोर क्वेश्चन सर।
अब मैं हमारे दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के चीफ एडवाइजर डॉक्टर वाई सिंह सर को इनवाइट करना चाहती हूँ कि आज के वेबिनार के लिए 2 शब्द कहें। वेलकम डॉक्टर वाई सिंह सर। बहुत अच्छा लेक्चर रहा आज का, बहुत बढ़िया। बाकी मैथमेटिका और रेपेटी तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन उससे हटके टाइम पर इतना बढ़िया लेक्चर देना डॉक्टर साहब का बहुत ही अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जी कहिए सर। सानी सर कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं अगर किसी को कोई सवाल हो तो अच्छा है। सर अभी नहीं है क्वेश्चंस। ओके। ठीक है सर। अब मैं अपना हमारे दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दीपक सर से अनुरोध करती हूँ कि वे 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कल्पना सर। तो लाजवाब हैं सर की, तो जो लाइनिंग्स हैं वही काफ़ी हैं। हम लोग बहुत दिनों से सर को सुनते आए हैं और सर डीएचएमए के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे यहाँ इनविटेशन एक्सेप्ट किया यहाँ पे लेक्चर देने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर। तो थैंक यू सो नहीं, मच मैं सर। तो बस अब रिटायर्ड आदमी हूँ और जी बस मुझे पढ़ना पढ़ाना यही काम में अच्छा लगता है। ये रोगी जी देखना है, तो यही काम तो बचा है और कोई काम है नहीं मेरे पास। तो आई डोंट जी हैव टू कोई लाइबिलिटी कुछ नहीं करने हैं। मैं तो खाली बस इसी में। आप श्वेता जी जानती हैं, हम लोग का एक रेगुलर डेली वेबिनार चलता है हिंदी और इंग्लिश में, तो मैं उसको जी कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। और मुझे इसी जी काम में ज़्यादा मन लगता है। आपको जब भी कभी लगे कि मुझे किसी टॉपिक पर बात करनी हो तो मैं निश्चित रूप से आप लोग के साथ में आऊँगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर कल्पना प्लीज प्रोसीड। थैंक यू सर। मैं अब अपनी हमारी प्रेसिडेंट डॉक्टर श्वेता मैम से अनुरोध करती हूँ कि आज का वोट ऑफ थैंक्स दें और हमारे जो भी स्पीकर हैं उनके लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो प्रदान करें। Thank you, Dr. Kalpana, and uh, thank you, sir, for your gracious presence and for your precious time in sharing your knowledge and wisdom. And please accept this appreciation certificate from the team of Delhi Homeopathic Medical Association. It was really unique and an enlightening session. Thank you so much. ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट। Thank you, sir. थैंक यू सर। हम आपको इसकी पीडीएफ और जो जेपीजी इमेज है वो आपको ईमेल कर देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और इस बार बिल्कुल जो सर, आप बिल्कुल। हम चाहते हैं सर, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन नहीं, आप को लोग भी ये आप। अच्छा काम में लगे हुए हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जो देखिए टीचिंग जो है ना, इसे ये पढ़ना पढ़ाना, इससे बढ़िया जी काम और दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। मैं तो यही जी सर। मानता सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ सर आप हमारे मेंबर्स को एक बार अपना वो जो ट्रांसमिशन वाला है उसका कंसेप्ट भी एक बार समझाएं तो बहुत अच्छा लगेगा सर, ताकि सब लोगों को जो नए हूँ। हैं आऊंगा, हमारे मैं साथ। आऊंगा, उस विषय पर भी लेके आऊंगा। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर श्वेता मैम, मीटिंग एंड करें। Ji, sir. I thank our honorable guest speaker, Dr. M.K. Sahani, for joining us today and for his insightful session. I thank my entire executive team for their continuous support and selfless services. And I thank all the viewers and followers to join us today. I hope the sessions are up to their expectation. If they have any query or any question, they can reach our team to at dhmadelhi@gmail.com, or they can also contact us at 9711423617. Thank you. ओके, गुड नाइट सर।